So, good evening, guys. Welcome to the new video, like a day 4 video of 30 days of Python training. So, guys, today we'll discuss about input function. So, what is input function? So, before it, we have studied about that print function. Then we have gone through that you know some operation. Okay, so today we'll studied about that print function, sorry input function. So इनपुट फंक्शन का नीडेड क्या है? तो आज तक हम लोग कैसे प्रिंट किए? तो डे 4 मैंने बना के रखी इनपुट। हम लोग कैसे प्रिंट करते थे? हम लोग प्रिंट करते थे ऐसे कि प्रिंट अभिजीत। ओके, so it will print. We print like that. Okay, but if someone give you one task that I will give you my name, or I'll tell you something else, you have to print this one. That is called user input. Like if user tell you to print something, then you have to print. Not like that predefined. Like first you defined here, that's why you can tell this predefined. Already defined here your name. Now you are printing it. But if in case for any project purpose, obviously it will be needed for any, well, like any project purpose or any everywhere, that you have to take input from the user. आपको इनपुट लेना है यूजर से, ठीक है? तो कैसे लेना है? तो उसके लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है इनपुट। एक मिनट। ओके, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है? ये इनपुट फंक्शन। सो कैसे लेना है, ठीक है? सो सो नाउ आई विल शो यू। मान लो आप एक आपको वी हैव ऑलरेडी दैट नोज अबाउट दैट variable, okay, where we can store our data. So that way we can create one variable like name equal to, now we'll create. So there is a rule how to create the input function. First you have to write here input. Okay, now so if you write this, so it indicates that you were taking input from the user. You are asking something that I need some input from you. Give me this input. Okay, so taking input from user. Okay, now if we want to print this input, so how to print? We have already discussed. So we have to write like that, print name, right? प्रिंट कैसे करनी है ना, ऐसे तो करने है ना कि प्रिंट लिखो, उसके बाद जो वेरिएबल है जहाँ पे स्टोर है उस, मतलब जहाँ पे डेटा स्टोर है उसको शो करना है। ऐसे तो करना है ना, पहले वाले वीडियो मैंने दिखाया था ना मैंने, ये देखो कैसे करना है। प्रिंट ए प्लस बी, ए यहाँ पे स्टोर है, ए प्लस बी स्टोर कर प्रिंट करना है, ऐसे तो किए थे ना। सो लाइक दैट वी हैव टू प्रिंट। ओके, now if you want to print, now if you print this one, so it will ask some input. See here, now cursor is here, so it is asking some input. Okay, if you write here hi Avijit, okay, so it will show you hi Abhijit.
whatever like you can write here. Okay, now there is a like key points. This input, if you write only input, it will take input as a string. We have already discussed about what is string, what is integer, right? These are data types. These all are data types. Okay. So अगर आपको पूछे कि इनपुट क्या है, मतलब ये जो अगर मैं इनपुट लिख दे तो क्या इनपुट करेगा, मतलब क्या प्रिंट करेगा करेगा ये, तो ये प्रिंट करेगा कि मतलब string value. You got my point? It will print the string value, taking input from user as a string. Okay. Now, so अगर आप मान लो कि मेरे को मतलब देखो, हम जब ये कॉल करते हैं, जब ये प्रिंट रन करते हैं, तो ये पूछ रहा है बस कुछ नहीं, मतलब बस एक कर्सर देखो, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, कुछ ब्लिंक हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक मतलब ऐसा शो हो कि प्लीज इन राइट समथिंग एल्स, प्लीज टाइप समथिंग एल्स। ओके, ऐसा प्रिंट करना है, उसके बाद कुछ डिटेल्स यूजर इनपुट कर सके, ऐसा मुझे करना है। ओके, लेट मी क्लियर इट नाउ। सी नेम, ओके सॉरी, now name equal to, I'll type like that, input enter, enter your name. Okay, so if you type like that, okay, so और एक बात मैंने बोला था कि जब भी प्रिंट कराओगे, ओके, और एक बात, जब ये इनपुट अब लिख रहे हो तो क्या हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है, ये वाला पूरा लाइन प्रिंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप प्रिंट नहीं लिख रहे हो, आप प्रिंट नहीं लिख रहे हो, आप प्रिंट नहीं लिख रहे हो, फिर भी ये प्रिंट हो रहा है, यही रूल है। देखो पढ़ो, ये क्या लिखा है, रीड a string from standard input, the trailing new line is stripped, the prompt string if given is printed to standard output without a trailing new line before reading input। ओके, ये छोड़ दो, ठीक है, ये क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, याद रखना। तो ये वाला लाइन प्रिंट हो रहा है विदाउट राइटिंग एनी प्रिंट फंक्शन, बिकॉज ये जो इनपुट फंक्शन है ये एक्चुअली इनपुट तो ले रहा है, लेकिन ये बोल के ले रहा है कि मुझे ये वाला दो, मैं शो कर रहा हूँ, ये वाला बोल के ले रहा है, मतलब इट इज शोइंग लाइक दैट, इट्स शोइंग दैट enter your name, but it's printing only this one, but taking as input. Okay, but taking as the input. Okay, I'll show you, see, but oh okay, yeah, I didn't print. Now if you want to print, see, now if you want to print whatever is this, it's showing, see, enter your name. Okay, enter your name, enter your name. Now if you want, now if you write here Abhijit, it will print in Abhijit, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, बस ये शो कर रहा है कि इनपुट लिखने के बाद ये एक मौका देते हैं आपको कि आप यहाँ पे कुछ लिखो, लिख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते, यू कैन राइट हियर। ओके, it will not affect here, it is just showing that you're writing here, it was just for your understanding purpose, that for your like better, what I'll say, that it's showing good, like, see, enter your name. So आप यूजर को ये बोल रहे, मतलब एक स्पेसिफिक
कमेंट दे रहा हूँ कि इसमें ये जो नेम वेरिएबल है जहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरा नाम ही शो करे, इंटर योर नेम, यहाँ पे मेरा नाम होना चाहिए। मान लो कि आप नेम नहीं लिखे हो, मान लो कुछ ए लिख दिए हो, ठीक है, मान लो कुछ ए लिख दिए हो, तो आपको याद नहीं रहेगा ना कि ये में क्या है। तो आप ये प्रिंट कर दे रहे हो, जैसे कि HTML में एक होता है ना कि एक टैग टाइप का, एक होता टैग नहीं मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है वो पर्टिकुलर क्या है। तो मतलब ये हॉवर टाइप का एक, जब जैसे कि एक हर एक जैसे कि आप कोई बॉक्स है जहाँ पे इंटर योर नेम ऐसा लिखा रहता है ना, उसके बाद आप नाम डालते हो, ऐसे ही है, इंटर योर नेम हियर। ओके, नाउ वी आर प्रिंटिंग इट। ओके, you got my point? Now if you write, now we'll discuss the new topic, that if you write input here, it will only take string value, it only take string value। okay, but मान लो कि आपका ये मन है कि मुझे स्ट्रिंग वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो क्या करना है? कुछ नहीं, मान लो बी इक्वल टू, अब अगर ऐसे लिखोगे इंटीजर वैल्यू लिखना है, तो आपको ये इंट पहले लिख देना है, मतलब आप टाइप कन्वर्सेशन, यहाँ पे ये जो इनपुट ले रहे हो ना, ये वाला जो इनपुट ले रहे हो इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो। एक मिनट, एक मिनट, दिखाते हैं आपको, वो अच्छे से समझाते हैं, जस्ट वेट, लेट मी ट्रांजिशन। ओके, सी, क्या बोला था मैंने? ये जो लिख रहे हो आप, बी इक्वल टू इंट इनपुट, सॉरी, बी इक्वल टू इंट इनपुट इंटर एज। तो ये क्या था? ये था स्ट्रिंग। जब ये इंट लगा रहे हो तो ये क्या हो रहा है? इंट कन्वर्ट टू इंटीजर। अब जब ये वैल्यू डालोगे तो क्या देगा? अब ये इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, इंटीजर में आप कन्वर्ट कर रहे हो। सो यही है, यही मैं बोलना चाह रहा। अगर आप इंट के जगह, ये अगर इंट के जगह है, एक मिनट, एक मिनट, मुझे ठीक आईपैड में ऐसा नहीं आता है क्या? ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ। तो अगर मान लो अब ये लिख देता हूँ, बी इक्वल टू फ्लोट इनपुट। ओके, तो क्या लेगा ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग से क्या हो रहा है? स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, स्ट्रिंग से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यही है इनपुट फंक्शन का मेन फंडा। ओके, नाउ आई विल शो यू। So let me open my Visual Studio. Okay, so if you print, okay,
So now I'll show you here C, and here I'll write float. Okay, enter your what salary. Now here I'll print B. Now here I'll print C. Okay, now let's see. First enter your age. ओके, तो आप डाल रहे हो 89. देखो 89 प्रिंट हो रहा है. नाउ इट इज आस्किंग. अच्छा, पहले दिन में बोला था कि पाइथन कैसे कम करता है, लाइन बाय लाइन. पाइथन कैसे कम करता है, लाइन बाय लाइन. सी, ये प्रिंट होने के बाद ये अगर इसमें एरर होता तो ये प्रिंट नहीं होता, यहीं पे खत्म हो जाता. ठीक है, तो इंटर योर सैलरी. अगर मान लो आप 89 भी डालोगे ना, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा. आप जो भी डालोगे फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा. अगर 89 के बाद कुछ नहीं डालोगे तो 89.00 फिर क्या करेगा, 89.000. ठीक है, देख रहे हो फ्लोट. अगर मान लो आपने डाल दिया यहाँ पे इंटीजर, तो कन्वर्ट कर रहे हो लेकिन डाल दिए ABC, क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे एरर शो करेगा. क्या शो कर रहा है, एरर. ठीक है, क्योंकि आप तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, डाल रहे हो ABC, कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए भी फंक्शन और कुछ मतलब है, छोड़ो, लेकिन इसमें नहीं होगा. ठीक है, तो पाइथन का क्या काम है, लाइन बाय लाइन काम कर देंगे. तो क्या देखिए, इसमें क्या आ गया, एरर आ गया, तो ये इसमें जाएगा ही नहीं, यहीं पे खत्म कर देगा. ठीक है, तो अगर आप इंट लिखोगे हमेशा आपको इंटीजर ही डालना है, और अगर फ्लोट लिखोगे हमेशा इंटीजर या फ्लोट डालना ही है, याद रखना. ओके, नाउ now we'll discuss about some operations. Okay, there are a lot of operations. Okay, but today we'll do only few operations. Okay, so let me create one operation. So select language Python. अगर डाउट आए तो मेरे को कमेंट में क्या बोलते हैं, मेरे को कमेंट में, कमेंट मतलब कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना कि मेरे को ये डाउट आ रहा है, कमेंट लिखना. और अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो एक बार पहले से देखना. अगर इस पॉइंट पे मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑब्वियसली मेरे को कमेंट करना. ठीक है, मैं आंसर दूंगा. नो, now we'll what operations. So there are lot of operations. Okay, so I'll show you. See, some operations. Operations, तो ऑपरेशन क्या क्या है, एक्शन. एक है एडिशन, ओके, इसका साइन है प्लस. और एक है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन माइनस. मल्टीप्लिकेशन, स्टार साइन. ठीक है, डिविजन,
ये साइन। उसके बाद है फ्लोर डिवीजन, फ्लोट डिवीजन। ओके, इसका साइन, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसका साइन है डबल। उसके बाद है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। इसका साइन है जो एम्परसेंड साइन है ना, वही। उसके बाद है, सारे तो कर लिए, सारे कर लिए, और कुछ नहीं, यही है। और एक है आपको, मतलब पावर का है, ये भी दे देता हूँ, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। अरे इसका साइन है डबल स्टार। ओके, नाउ विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हियर अरिथमेटिक। देखो ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक से कुछ नहीं है, बस मैं एक एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट रहेगा, वो आज एक मज़ेदार असाइनमेंट। चलो, मान लो a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 3। ओके, नाउ if we want to do first एडिशन, ठीक है, कैसे करना है? ऑलरेडी मैंने वेरिएबल ले लिया, ये क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब बस्केट, जहाँ पे डेटा स्टोर होते हैं। चलो प्रिंट कर रहा हूँ बस, प्रिंट। अच्छा, और एक बात, जब प्रिंट मैंने बोला था ना, प्रिंट में आप, अच्छा ये बोला नहीं, बोल शायद, चलो बोल देते हैं। प्रिंट में एक ऑप्शन है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, एडिशन। ये वाला तो प्रिंट होगा है, ठीक है, लेकिन ये वाला क्या है? ये वाला मतलब इसमें एक सी प्रिंट हो रहा है, जैसे मान लो, अच्छा बोल देता हूँ, उसके बाद मैं इजी कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला मतलब, ये जो, ये तो प्रिंट हो रहा है, एडिशन तो लिख, मतलब ये प्रिंट करेगा, लेकिन उसके बाद एक ऑपरेशन प्रिंट हो रहा है, क्या? ये जो वेरिएबल आपने लिए थे ना, ए और बी, ये जो वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू प्रिंट हो रहा है इसके साथ। ये कॉमा है ना, एक बोला था ना, एक कॉमा देख के आप प्रिंट कर रहे हो, ए बी सी डी, ऐसा कुछ। ये देखो प्रिंट हो रहा है, उसके बाद सेपरेट। बस सेपरेट नहीं कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो आप? इसमें कर रहे हो आप और एक जिसका वैल्यू, मतलब ये वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, ए प्लस बी एडिशन कर रहे हो, ठीक है। लिख देता हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सी लिखोगे तो वो ये प्रिंट कर देगा सी। ऐसे भी ए प्लस बी डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अभी आप लोग मतलब बेसिक सीख रहे, बेसिक से सीख रहे हो, तो इसीलिए मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है। So it will print C value, or else you can write here that A plus B, no issue. So it will show you C 13 addition. Now subtraction. So C equal to A minus B. Again we have already took C, so you can't. Otherwise it will, अगर बाद में सिखाऊंगा कैसे वेरिएबल का ओवरलैप हो जाता है, ठीक है, हम बाद में सिखाएंगे। चलो अब एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, d इक्वल टू ए माइनस बी। अगर ये d करोगे तो ए माइनस बी का प्रिंट होगा d। देखो सब्सट्रैक्शन 7 10 माइनस 3। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन, इसका भी e इक्वल टू माइनस
ए इंटू बी ई। मल्टीप्लिकेशन साइन क्या बोला था मैंने? स्टार साइन। प्रिंट करना, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे डिवीजन एफ। सो एफ प्रिंट कर रहे हो एफ। उसके बाद हम करेंगे फ्लोर डिवीजन, ठीक है। फ्लोर डिवीजन क्या साइन है? डबल डिवीजन का मतलब डबल स्लैश। ओके, इसका आंसर क्या होगा वो भी बताता हूँ, वो भी बता दो। चलो उसके बाद है सॉरी, इसके बाद है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब वो एम्बेशन, मतलब जो परसेंटेज का साइन है वही, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंट, ठीक है। चलो, हाँ हाँ, मेरे को बस ये क्या है, आपको दो चीज समझाना है। एक तो एक्सपोनेंट है, अच्छा तीन चीज, एक्सपोनेंट है, दो मॉड्यूलस है, और एक फ्लोर डिवीजन है, ठीक है। ये तीन चीज समझाते हैं। चलो एक मिनट, मेरे को ये वाला मेरा आईपैड थोड़ा कनेक्ट करने दो मेरे को। हम्म, जल्दी। हम्म, चलो कनेक्ट हो गया। चलो अब दिखाते हैं क्या क्या दिखाना है। डिवीजन वाला, जब a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 3 होगा तो डिवीजन में क्या क्या आंसर आएगा? डिवीजन में आंसर आएगा, अरे यार चलो बना देते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा है। a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 3, तो जब मान लो क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन, राइट। सो मान लो c इक्वल टू a डिवीजन 3 डिवीजन b, सो मतलब इसका होगा 10 डिवाइडेड बाई 3। तो क्या हो रहा है, इसका आंसर आएगा 3.33। ओके, क्यों वो पता है ना? 3 then 0.1, so like that 3.33। ये हो गया डिवीजन। पर मान लो फ्लोर डिवीजन क्या होता है? सेम, a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 3 d इक्वल टू a बाई b। सो इसका आंसर आएगा ओनली 3। क्यों? फ्लोर डिवीजन मतलब ये सिर्फ 3 10, 3 3 इंचन 9 1, ए ओनली ये वैल्यू लेगा, पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू नहीं लेगा, बस 3 ही लेगा, ठीक है। इट विल टेक ओनली 3 if you use floor division, okay, after the point it will not take any value. This is floor division, okay, you got? Like if you have 4 11 or 112, okay, no, 122, 4 3 ja 12, now 2 0, okay. Now if you do point, then it will come 0, so it will take only 30, okay. After that this 0.5 will not take. Got my point? This is floor division. Now exponent, 2 a equal to 2
b equal to 3, okay, a equal to 2, b equal to 3. So if you do exponent, okay, so it will be like b, that's mean 2 into 3. So this is called 2 to the power 3. That's mean answer will be 2 into 2 into 2 will be out 8. So answer will be, okay, I'll give you 2 into 2 into 2 into 2 equal to 8. But if you give 3 exponent 2, so it will go like 3 to the power 2. That's mean 9. These are the things that I need to discuss. Okay, flow division, division, and this exponent. Now I'll show the answer. Output was, input was A and B. Addition 13, subtraction 7, 30, division 3.3, flow division 3, modulus I didn't tell you, I'll show you. Modulus 1 and exponentiation 1000. Why? 10 to the power 3, 10 into 10 into 10. Okay, let me tell. What is modulus? See, modulus. So we took output as a equal to 10, b equal to 3. So c equal to a combustion b. That's mean 10 combustion 3. So how it will? What is the answer? Answer will be modulus. You know modulus. 3, 10, 3 3 9, 1. This will be the answer. This is called modulus. You know? It's called modulus. Okay, this is modulus. Like if you have input like 40 and if you have like 2, then what will tell me what will be the output? Okay, what will be the output? Tell me, guys. Output obviously 0. Obviously 0 because there is no output. Got it? So these are all from my side for today. So now guys, for today you have for you some like assignment. So what is the assignment? Okay. Create a calculator. This is the assignment for you. Okay, बस आज के लिए इतना ही. ठीक है, अगर समझ नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो देखना, ये तो मेरे को कमेंट करना कहाँ पे दिक्कत आ रही है. I'll teach you again. Okay, बाय बाय. आज के लिए बस इतना ही.